We're reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 13th chapter, chapter name Dhritarashtra quits home, and we are reading from verse number 46. काल कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पंचभूत भौतिकः कथं मन्यासु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम्. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. This gross material body made of five हरे elements is कृष्णा प्रभु। Hare Krishna Aunty ji. This gross material body made of five elements is already under the control of eternal time, time which is kal, and action which is karma, and the modes of material nature, which is guna. How then can it, being already in the jaws of serpent, protect others? Anybody wants to read the purport? I can read Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna Mataji. The world's movements for freedom through political, economic, social, and cultural propaganda can do no benefit to anyone, or they are controlled by superior power. A conditioned living being is under the full control of material nature, represented by eternal time and activities under the dictation of different modes of nature. There are three material modes of nature, namely goodness, passion, and ignorance. Unless one is situated in the mode of goodness, one cannot see things as they are. The passionate and the ignorant cannot even see things as they are. Therefore, a person who is passionate and ignorant cannot direct his activities on the right path. Only the man in the quality of goodness can help to a certain extent. Most persons are passionate and ignorant, and therefore their plans and projects can hardly do any good to others. Above the modes of nature is eternal time, which is called Kala, because it changes the shape of everything in the material world. Even if we are able to do something temporarily beneficial, time will see that the good project is frustrated in course of time. The only thing possible to be done is to get rid of eternal time Kal, which is compared to Kal Sarpa or the cobra snake, whose bite is always lethal. No one can be saved from the bite of a cobra. The best remedy for getting out of the clutches of the cobra like Kal or its integrity, the modes of nature, is Bhakti Yoga, as it is recommended in Bhagavad Gita 14.26. The highest perfectional project of philanthropic activities is to engage everyone in the act of preaching Bhakti Yoga all over the world, because that alone can save the people from the control of Maya or the material nature represented by Kal, Karma, and Guna, as described above. The Bhagavad Gita 14.26 confirms this definition. Hare Krishna. Hare Krishna. What a beautiful verse, huh? Now, let's start dissecting this. So, we know what's happening. Dhritarashtra has, if you look at the context of this particular chapter, which is chapter 13, Dhritarashtra quits home. We have seen that Dhritarashtra, Vidur comes and tells Dhritarashtra, it's not a good idea for you to stay here, in order for you to go back home, back to Godhead. This is your duty. Get out of this house. Don't stay here. वो मान नहीं रहा था. Then he gave a very, very gross examples and stuff. और उससे वो समझ गया, and then he left the house. Then obviously Yudhishthir Maharaj came and he was asking where he is, and then he found out कि वो चले गए, and then he was very upset. Dhritarashtra was very upset, and then when he was upset, then who comes to actually help him is Narad Muni. Narad Muni comes, and Narad Muni says that you should not lament for anyone. हर कोई सुप्रीम लॉर्ड के कंट्रोल में है. We saw that, है ना. और जिस तरीके से एक काव है ना, जो जो बहुत बड़ी रस्सी से बंधी हुई है, उसी तरीके से वी ऑल आर बाउंड, है ना, बाय वैदिक इंजंक्शंस, so that we can actually take care of the orders of Supreme Personality of Godhead. And then in this one, and then he's saying that अगर आप सोल को इटर्नल प्रिंसिपल मान रहे हो और मटेरियल बॉडी पेरिशेबल है, तो एवरीथिंग, तो ये तो सारी एब्सोल्यूट ट्रूथ है ही नहीं. एब्सोल्यूट ट्रूथ इज सोल, है ना.
सो बाकी सारी चीजें जो तुम्हारे जो अंकल है वो चले गए हैं, वी शुड नॉट वरी अबाउट हिम, है ना। अल्टीमेटली हिज सोल इज गोना बी लिबरेटेड। और उसके बाद देन ही वाज सेइंग दैट प्लीज गिव अप योर एंजाइटी, बिकॉज ये आपकी एंजाइटी किस लिए आ रही है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ, है ना। द होल थिंग नारद मुनि इज ट्राइंग टू कन्वे इज वी आर नॉट दिस बॉडी, दैट काइंड ऑफ स्टफ, है ना। एंड देन he said in the last verse that you are now thinking of how they will exist without you. आप सोच रहे हो कि आपके जो अंकल हैं वो आपके बिना कैसे रहेंगे। I mean, you are not the कर्ता धर्ता, है ना। he is clearly saying that you think that आपकी वजह से वो जिंदा थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। And then today's verse he is talking about this gross material body made of five elements is already under the control eternal time. It's not in the control of you, है ना। और फिर बोला कि you as a person, if you are already in the jaw of the serpent, then how can you protect others, है ना। So now let's see what Srila Prabhupada does and gives an amazing purport in this, where he starts off with, he everybody in the world they want to be free, है ना। और फ्रीडम किसके लिए होना चाहिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल प्रोपेगेंडा। अब ये सारी चीजों में देर इज नो बेनिफिट। नाउ in terms of starting off with, hang on a second, let me close this window. Srila Prabhupada uses one verse, Bhagavad Gita. I'm gonna open in a new tab. Now open this in the new tab as well. Okay. So now he's saying that काल कर्मा गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपयेत् सर्पग्रस्तो यथा परम। अब बॉडी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट, है ना। अब शिला प्रभुपाद स्टार्ट जो अपना वो है वर्स है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट है, हाउ मेनी थिंग्स इज डिपेंडेंट ऑन, थ्री थिंग्स, वन इज काल, है ना, एंड देन कर्मा, और देन गुणा, है ना। काल कैसे कंट्रोल करता है, बिकॉज काल चेंजेस एंड डिस्ट्रॉयज। टाइम के साथ सारी चीजें पैदा होती हैं, बढ़ती हैं, और सारी चीजें फिर मर जाती हैं, है ना। दूसरा है द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय कर्मा, बिकॉज हमारे पास जो कर्मा है उनके कारण हमें जो बॉडी मिली है, सिर्फ उनके उस कर्म के कारण मिली है ना। जो हमारी सिचुएशंस हमारे पास उस बॉडी के आजू बाजू में, वो भी हमें कर्म के कारण मिली है। एंड द थर्ड वन इज ही टॉक्स अबाउट इज गुणा। गुणा मतलब गुण, कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुण। सदगुण, रजगुण, तमगुण तो पता है, लेकिन व्हाट डज इट मीन इन हेयर, दैट इट इज मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर गुणा, व्हाट डज इट मीन। They were like rope. Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण, सॉरी माता जी बोलो। Guna means bandna, like हाँ rope. नहीं मतलब हाँ वो ठीक है, लेकिन व्हाट डज इट मीन, गुण का क्या मतलब, जैसे किसी में बोलते हैं ना कि हम गुणों से बंधे हुए हैं, सदगुण, रजगुण, क्वालिटीज, तमगुण। क्वालिटीज हुआ मतलब, तो मतलब यस, इट्स टेंडेंसीज, है ना, वेरी नाइस, इट्स ए टेंडेंसी। और माता जी बोल रहे थे वो भी ठीक था, क्योंकि गुण का मतलब कर्म। होता है रोप, है ना। रोप से, वो रोप कौन सी है, वो हमारी जो टेंडेंसीज हैं। अब टेंडेंसीज का क्या मतलब है, हमारी माइंड, जो हमारा माइंड है, वो भी हमारा गुण, गुण के हिसाब से हमारा माइंड काम करता है ना। सो हमारी माइंड, इंटेलिजेंस, हमारी जितनी टेंडेंसीज हैं, सो अब ये कैसे होती हैं, अगर हम सत्वगुण में हैं तो हमारा माइंड थोड़ा सा काम रहता है। अब हम दूसरे रजोगुण में होंगे तो भागेगा तेज तेज, और तमोगुण में होंगे तो फिर हम लोग बिल्कुल लिथार्जिक हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से जो लोग मेजोरिटी तमोगुण में रहते हैं, they will look for very bad things. For example, they will look for liquor, they will always look for meat and stuff. They are actually mostly in the mode of tamas, है ना। रजोगुण भी होता है, क्योंकि जो मांस मच्छी खाने से रजोगुण भी बढ़ जाता है ना। और रजो और तमस दोनों बढ़ता है। सत्वगुण के लिए क्या होता है, उसकी सत्वगुण में टेंडेंसीज डिफरेंट होती है। जो आदमी मेजोरिटी टाइम में सतोगुण में रहता है वो एकदम पीसफुल रहेगा, है ना। और जिस आप गुण में होते हो उस गुण के हिसाब से आपकी बॉडी काम करती है ना।
अब शिला यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हाउ कैन समवन हु इज ऑलरेडी इन द जॉ सर्वेंट कैन प्रोटेक्ट अदर्स, है ना। सुखदेव गोस्वामी शुरू शुरू में बताते हैं विदुर को, है ना, कहते हैं कि मटीरियल, हम लोगों ने देखा था ना, मटीरियल प्लान्स हमेशा फेल होने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी विदुर को नहीं बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे, जब बताते हैं नैमिषारण्य में सब लोगों को, और जो विदुर जी जब बात कर रहे होते हैं धृतराष्ट्र से, तो यही बोलते हैं, मटीरियल प्लान्स विल ऑलवेज फेल। उसका क्या रीजन है? क्योंकि जो मटीरियल प्लान बना रहा है, जो प्लानर है, वो भी कंडीशनड है ना। और जिन चीजों को लेके वो प्लान बना रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि देखो आज मैं क्या करता हूँ कि हमारा प्लान ये है कि अपने बेटे को इस स्कूल में भेजेंगे, है ना। तो जो मैं हूं, मैं भी कंडीशनड हूँ, और जो स्कूल है वो भी टेम्परेरी है, लाइक उसमें जो बंदे पढ़ा रहे हैं वो भी कंडीशनड है, वो भी टेम्परेरी हैं, है ना। और उस स्कूल में पढ़ा के हम उसको ये बनाएंगे वो बनाएंगे, जो रिजल्ट आने वाला है वो भी टेम्परेरी है। हम लोग सब लोगों ने पढ़ लिया ना। अब हम लोगों ने, याद है जब हम लोग 10th का बोर्ड का एग्जाम था, तो कितना बड़ा हवा बना रखा था कि 10th का एग्जाम है, सारी जिंदगी इस पे टिकी हुई है। हो गया, अभी किसी को याद भी नहीं होगा 10th में कितने मार्क्स आए थे, है ना। फिर 10th का एग्जाम हो गया, फिर हाँ साइंस मैथ्स मिल गई, और उसके बाद बोला नहीं नहीं, 12th में जो होता है ना वहीं से सब कुछ होता है भैया, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वहीं से जा सकते हो। 12th इज द मेन, 10th नहीं था, अब 12th मेन है। और 12th भी कर लिया, 12th में भी अभी याद नहीं है कितने मार्क्स आए थे, है ना। फिर उसके बाद 12th कर लिया, फिर हाँ इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद सब इंजीनियरिंग भी कर ली, उसके बाद अरे जब बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी तब फिर भी हो गया। अच्छा अब फॉरेन कंट्री में जाके काम करोगे तब तो वहां भी चले गए, है ना। लेकिन ये जो सारे के सारे जो हम लोग कर रहे हैं, प्लानिंग बनाई है, वो सारी की सारी क्या थी? सारे रिजल्ट्स टेम्पररी हैं। अभी हमें 10th के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, 12th के रिजल्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ पर है ना। और टाइम क्या करता है? टाइम के एक ही चीज की गारंटी है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। मृत्यु सबको आके एक दिन निकलेगी, इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज नॉट गारंटीड, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो नाउ, अब जो ये गुण की बात हो रही है यहां पर, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट काल, काल का हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। कर्म का हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं? कैन वी डू समथिंग अबाउट कर्म? कैन वी चेंज आवर कर्म? We can. आई मीन फ्यूचर के लिए, बट जो हो गया है उसका जो हम कर्म भुगत रहे हैं, कैन वी चेंज दैट? We can't change that, but how we deal with it, we can. We have the यस, control over that. यस, वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल हाउ वी डील विद इट, नाउ वी हैव नॉलेज। जैसे मैंने उस दिन भी शेयर करा था, व्हाट हैपेंड वाज एट माय वर्क, है ना। देयर वाज अ टाइम जब वन ऑफ माय बॉसेस, उन्होंने बहुत वो कर दिया था, दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट मी, यू नो, इन उन मेरी बहुत ज्यादा, दे वर ट्राइंग टू ब्लेम समथिंग ऑन मी जो मैंने नहीं करा था, एंड इट वाज अ मैसिव हेडेक फॉर मी। मतलब आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, है ना, कि यार उन्होंने मेरे लिए ऐसे कैसे बोल दिया। एंड आई वाज सो ह्यूमिलिएटेड, आई वाज सो एंग्री, सो अपसेट। और मतलब मेरे को पहली बार ऐसा हुआ था कि अब खाने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑफिस में क्या चल रहा है, मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया किसी ने, सीनियर मैनेजर ने, है ना। एंड देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे, एंड लकीली आई वाज लिसनिंग टू भागवतम, एंड भागवतम के नीचे जो आ जाते हैं ना चीजें, कि ये कुछ सजेशंस आ जाते हैं, सजेशंस में अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर था, 7-8 मिनट का ही था। उसमें अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे, तेरा 6 थिंग्स यू कैन नॉट चेंज, वन इज सुख दुख, जन्म मरण, और मान अपमान। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड, है ना। सो सो उसमें मैंने, मान अपमान, धन, सॉरी, सुख दुख, जन्म मरण, और मान अपमान, ये 6 चीजें आप नहीं नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। यू कैन हियर मी ना? Yes, Prabhuji. ओके, हाँ। सो 6, जैसे ही वो मैंने सुना, मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरा अपयश हो रहा है अभी, मेरे को जो लग रहा है वो अपयश है अभी, और ये मैं चेंज ही नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे खुद के कर्म है।
आपको मैं बता नहीं सकता, मैं इतना पीसफुल हो गया उसी समय। जिस पर्सन के लिए मेरे को, जिस पर्सन ने मेरा अपयश करा था, मेरे अंदर उसके प्रति इतना गुस्सा था, वो सारा का सारा गुस्सा चला गया। है ना। तो मेरे को लगा कि यार ये तो मेरे किस्मत में था, आई डिजर्व इट, बिकॉज मैंने करा होगा ऐसा कुछ पास कर्मा। हाउ वी डील विद इट राइट नाउ, इट इज कंप्लीटली अ चॉइस। ना, देयर इज अ ओल्ड सेइंग विच सेज दैट इस मटेरियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल, आएंगी आएंगी प्रॉब्लम्स, लेकिन उस प्रॉब्लम से कारण जो मिजरी आती है दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल, बिकॉज मिजरी कम्स फ्रॉम the mindset of our mindset towards that particular thing that we are dealing with. रिचा माता जी, आपका क्वेश्चन है? हाँ जी प्रभु, आपने पूछा था प्लीज ना, प्लीज। कैन वी हाउ के व्हाट इफेक्ट, मतलब उसका हम पिछले जन्म के कर्म का कुछ कर सकते हैं कि नहीं। हाँ तो हाँ। मुझे यही कहना था, हम उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, उसको कर्म को नहीं चेंज कर सकते, बट आई थिंक उसके वेरी नाइस। इफेक्ट को हम जरूर कम कर सकते हैं, या कैसे इम्प्रूव काम कर कर सकते सकते हैं। हैं? हाँ, कैसे? अच्छे काम करके उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। नहीं कर सकते। नहीं कर कोई सकते। और और कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही जो बोल आप रहे हैं। बोल रहे हो वो दूसरा तरीका वो है कि उसको ऑब्वियसली डील करने के एंगल को नहीं नहीं नहीं, सोचने वो का भी तरीका। नहीं, लेकिन हमारे जो कर्म है ना उसका जो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी का, सपोज, जस्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, जी। somebody has murdered someone in the last past life, they have to get murdered this life। ठीक है। हाँ, ठीक है। दे हैव टू गेट मर्डर दिस लाइफ, कोई प्रॉब्लम उसमें, कोई दो राय है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते आप। है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर इस जन्म में किसी की जान बचा ली तो आपके आपके आपको जो पिछला कर्म है वो मिट जाएगा। आपको, आपने कुछ अच्छे काम करे और कुछ बुरे काम करे, तो ये दोनों आपस में कभी भी नलीफाई नहीं होते हैं। अच्छे काम का जो इफेक्ट होता है वो आपको अच्छाई में मिलेगा, बुरे काम का जो इम्पैक्ट होता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक ही रास्ता है, अगर हम आपको जो हमारे कार्मिक रिएक्शन है उनका इम्पैक्ट कम हो जाए, इज थ्रू भक्ति। भक्ति क्या करती है? भक्ति हमारे प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों तरीके के जो कर्म होते हैं उनको नलीफाई करती है। भक्ति के अलावा कोई रीजन नहीं है। अगर आप कितने भी, अगर आपने पिछले जन्म में किसी को भूख से मारा है, किसी को जबरदस्ती उससे खाना छीन लिया और वो भूख से मर गया है, इस जन्म में आप कितने भी लोगों को खाना खिला दो, वो आपका वो जो कर्म जो था आपका, जिसमें आपने भूख से किसी को मारा था, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और जो आपने आप इस जन्म में इतने सारे लोगों को खाना खिलाया है, उसका जो फल है वो भी आपको मिलेगा मिलेगा, अच्छा अच्छे वाला। लेकिन ये दोनों जो फल होते हैं आपस में कभी भी एक दूसरे को नलीफाई नहीं करते हैं। डज इट मेक सेंस, ऋचा माता जी? यस प्रभु। ये सॉरी। तो, ये ओके। सो नाउ, तो हम लोगों ने क्या करा, तो क्या हुआ, पहले तो हमारा मटेरियल प्लान्स हमेशा फेल होंगे, क्योंकि प्लानिंग जो कर रहा है वो भी मटेरियल है, जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं वो भी टेम्परेरी है, जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो भी टेम्परेरी है ना। सिर्फ एक ही चीज की गारंटी है, वो है टाइम की, और टाइम क्या करेगा? एंड में, एट द एंड ऑफ द डे, सब कुछ खत्म करेगा ही करेगा। एक ही चीज है जो काल को, कर्म को और गुण को, इन तीनों की पावर को घटा सकती है। अब मैंने कर्म और गुण की पावर को कैसे भक्ति घटा सकती है वो तो मैंने बता दिया। जब आप भक्ति करते हो तो भक्ति में कर्म भी आपके कट जाएंगे, और आप क्योंकि भक्ति कर रहे हो तो ट्रांसेंडेंटल गुडनेस में आप होगे। लेकिन काल को कैसे कट करेगी, कोई बता सकता है? भक्ति जो है वो काल पे भी इंपैक्ट डाल सकती है। इट कैन एक्चुअली नलीफाई द इम्पैक्ट ऑफ काल एज वेल। हाउ? तो वो आई थिंक, पता नहीं कितने सही, बट व्हेन यू आर इनटू भक्ति, आप चैंटिंग करते हो, तो आप इस टाइम जोन में रहते भी नहीं, यू आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आई थिंक। That's a very good, yeah, that's actually right. That's true. That is really, जो लोग भक्त होते हैं ना, they are actually not living in the timeline, not in the material timeline, because I'm talking about शुद्ध भक्ति है ना। शुद्ध भक्ति में you are in a transcendental platform, you, and this time doesn't impact, but फिजिकली हमें इम्पैक्ट करेगा। बूढ़े हो जाएंगे लोग, लेकिन जो बुढ़ापा होगा वो कुछ नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ बिगाड़ पाएगा। है ना। इवन जो काल जो होता है, काल क्या करता है एंड में, कहाँ पर लेके जाता है? मौत की तरफ लेके जाता है। लेकिन डेथ जो होती है, डेथ का रियल मीन, डेथ एक्चुअली मीन्स कि आपकी बॉडी में से आपकी सोल को खींच के निकाला जाएगा, एंड पीपल बहुत तड़पता है, तड़पती है सोल जब निकाला जाता है।
लेकिन एक भक्त होता है, वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि भक्त को क्या है, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शनम, उनको स्वर्ग में ले जाओ, उनको नरक में डाल दो, उनको अपवर्ग मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड में डाल दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। भक्ति का ये इम्पैक्ट है काल पे, है ना। लेकिन ये जो भक्ति है, मैंने एंड आई थिंक वी हैव टू डिस्कस दिस ऑन नियरली इन एवरी क्लास, इज भक्ति का मतलब लोगों को क्या क्या लगता है। भक्ति का मतलब मैं रोज सुबह उठ के भगवान की पूजा कर लूंगा, दिया जला दूंगा, अगरबत्ती जला दूंगा, और साल में 2 बार मैं मंदिर चला जाऊंगा, एंड दैट्स इट, भक्ति हो गई मेरी। और हर फ्राइडे को भक्ति वृक्षा क्लास में चला जाऊंगा, दैट्स इट। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट भक्ति का जो एलिमेंट है, जो हमें डेली करना चाहिए, वो क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द वन थिंग दैट वी कैन नॉट मिस, दैट इज द एसेंस ऑफ भक्ति इन कलयुगा? चैंटिंग प्रभु। Chanting, very nice. Now Richa Mataji is gonna be a pure devotee because she knows that this is chanting. Because chanting, लोगों को क्या लगता है, chanting is normal, कि ठीक है यार, हो गई, नहीं हुई नहीं हुई। Chanting 95% of your भक्ति depends on chanting। 5% में बाकी सारी चीजें होती है, भागवतम क्लास हो गई, भक्ति वृक्षा क्लास हो गई, भगवत गीता हो गई, श्रीमद् भागवतम हो गई। 95% इज योर चैंटिंग द होली नेम। जय श्री कृष्ण प्रभु, कैन आई जस्ट इंटरप्ट, सॉरी। यस प्लीज प्लीज प्लीज। आपने एक दो चीजें बताई तो मेरे को उसके लिए क्वेश्चन पूछना था आप बिफोर आई प्लीज बोलिए फॉरगेट ना, द चेन ऑफ थॉट। प्लीज। वो जो आप बोल रहे थे ना विद द पाप एंड द पुण्य हाँ 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 थिंग, हाँ तो हाँ इज इट, तो जो लोग हरिद्वार जाते हैं एंड वो कुंभ मेला जाते हैं एंड वो सब लाइक दैट यू आर, आप अपने क्लेंस कर रहे हो अपने आप को, सो इज दैट हाँ। नॉट ट्रू? ट्रू है, लेकिन जो उसमें जो पाप कट, जो हम लोग कहते हैं ना, गंगा नहा लिया मेरे सारे पाप कट गए, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू डोंट डू दैट दोज थिंग्स अगेन अगेन, ओनली देन इट वर्क्स। भक्ति क्या करता है? भक्ति विल टेक आउट, भक्ति दो चीज करता है, एक तो आपके पाप कर्म निकाल देता है, और पाप करने की प्रोपेंसिटी भी निकाल देता है। लेकिन हम्म। गंगा में क्या होता है, गंगा में आपने नहा लिया है ना, हम लोगों ने नहा के आ गए गंगा में, लेकिन जैसे ही गंगा नहा के आए, बोले सर पीछे के पाप हमें लगता है हमें मिट गए हैं, और फिर हम जाके, अच्छा ठीक है अब मैं क्या करूंगा, अगले साल वापस गंगा नहाने चल जाऊंगा, तो एक साल है मेरे पास, जो भी मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। सो व्हेन दैट मेंटेलिटी कम, वो जो पाप आप धोखा है वो गंगा में, इट डज नॉट वर्क एट ऑल। वो आपके पाप जो होंगे वो आपको वापस धरेंगे आके, क्योंकि वो पाप तभी तक नहीं, तब तक तभी छूटते हैं वो पाप, तभी धुलते हैं वो पाप, जब आप दोबारा वो पाप ना करो। लेकिन भक्ति क्या करता है? भक्ति क्या करता है? भक्ति एक तो आपके पाप कर्म खत्म करता है, दूसरा वो पाप करने की जो प्रोपेंसिटी है वो भी खत्म कर देता है। गंगा में हम्म। नहाने से पाप कर्म की प्रोपेंसिटी नहीं जाती है। आप ना डेली भगवान के दिया जलाओ, पूजा करो, अगरबत्ती जलाओ, व्हाट विल हैपन, आपके पाप करने की जो प्रोपेंसिटी है ना, नॉट नेसेसरीली हो जाएगी, है ना। क्योंकि कलयुग में अगर यही चीज आप द्वापर में कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। द्वापर में वही अर्चना जो था, अर्चना मतलब भगवान की पूजा करना, दैट वाज द वे टू गेट रिड ऑफ योर कर्मा एंड पाप कर्मा, और पाप करने की प्रोपेंसिटी दोनों चली जाती थी। बट कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा, कोई और तरीका ही नहीं है हरि नाम करने के अलावा, भगवान का नाम जपने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग इस भक्ति में आगे बढ़ सके ना। और इसीलिए जो चैंटिंग है, चैंटिंग इज द ओनली वे जो परमानेंटली आपके जो कर्म है, कार्मिक कर्म है, उसको काट देगी परमानेंट, क्योंकि वो कर्म So भी काटेगी। chanting, हाँ बोलिए but बोलिए। what about chanting? So we know about Krishna, we know हाँ about Krishna consciousness, but there's so many people who are not doing Krishna chanting. They're probably doing Buddhist chanting or हाँ different chanting, or I हाँ don't know. I'm sure Christianity में भी कोई chanting होगी. हाँ So देखो, how do you say that only chanting Hare Ram, Hare Krishna, हाँ इट्स अ only गुड this पॉइंट। chanting? हाँ नहीं, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट एक्चुअली। एक्चुअली हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, भगवान में और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है ना, इसीलिए चैंटिंग बोली जाती है उनका नाम लेने का, हाँ. है ना। लेकिन और जैसे गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध इज इनकारनेशन ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ, ठीक है। लेकिन जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है, उस बुद्धिस्ट चैंटिंग में भगवान कृष्ण का नाम नहीं है। Buddhist chanting Mm-hmm. is only can take you up to a level of क्या बोलते हैं, impersonal liberation, which is called, वो कौन सा मोक्ष है जिसमें आप जाके
ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हो, वहीं तक ले जाता है बुद्धिज्म, है ना। हम्म। लेकिन बिकॉज बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, and that's why they don't believe in the name and the form is same, because they don't believe in form, so they don't understand the name and the form is the same. And that's why the maximum they can get to is impersonal liberation, which is they can get into brahmajyoti and they will stay there for millions and millions of years, and then they get bored, because हमारा जो सोल है, हमारी सोल की प्रोपेंसिटी क्या है, सेवा करना। क्योंकि आप ब्रह्म ज्योति में आप मिल गए हो, तदाकार हो गए हो भगवान की ज्योति में, सो यू डोंट हैव एनी वे टू सर्व द लॉर्ड। फिजिकली आप सर्व नहीं कर पा रहे हो भगवान को, सेवा नहीं कर पा रहे हो। और हमारी जो प्रोपेंसिटी है वो जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरे नित्यदास, दिस इज आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ ए जीवा, ऑफ ए सोल, इज टू बी ए सर्वेंट। और वहां पर सर्विस का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप और जैसे हाँ, आप मिल ही गए उस ज्योति में, जो भगवान मानते हो जिसको, उसमें मिल गए हो, तो आप उनकी सेवा नहीं कर सकते। सो पतंती अधा, इसमें श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि इस तरह का जब मुक्ति मिलती है, तो पीपल हु गेट लिबरेटेड दे कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज दे गेट सो बोर्ड। एंड आप देखो, यू नो, द पीपल हु आर एक्सट्रीमली रिच, एक्सट्रीमली ओपुलेंट, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लोग हैं, दीज पीपल, देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट दीज पीपल आर दोज हु हैव डन सच अमेजिंग, यू नो, क्या बोलते हैं, योगा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, दे नाउ दे आर बोर्ड, दे कम बैक, बट दे स्टिल हैव लॉट ऑफ सिद्धियां उनमें, एंड दैट्स व्हाई दे आर सो पॉपुलर, दे आर सो अमेजिंग एट देयर स्पोर्ट। यू नो, सचिन तेंदुलकर हुआ, इस तरह के जो लेजेंड्स हैं ना, देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट दे आर कमिंग फ्रॉम दोज प्लेटफॉर्म। बट वहां से जब हम नीचे आ जाते हैं, व्हाट दीज गाइस डू, दे डू अ लॉट ऑफ चैरिटी, क्योंकि सेवा करने का वहां मौका मिला नहीं है। दे कम टू अर्थ एंड दे स्टार्ट डूइंग चैरिटी, 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 खूब चैरिटी करते हैं, खूब पुण्य कमाते हैं, है ना। लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि अब भक्ति कर सकते हैं अगर कोई उनको भक्त मिल जाए। बट ये तो एक चीज हो गई। दूसरी, आपने बोला कि वाई ओनली हरे कृष्णा महामंत्र, क्योंकि अ, एक मैनुअल होता है, हर एक युग का एक मैनुअल है। हर एक युग में अलग अलग तरीके की पद्धति बताई गई है, अलग अलग तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया है कि हाउ कैन यू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, विच इज टू सर्व लॉर्ड कृष्णा इन गोलोक वृंदावन या वैकुंठ धाम में। लेकिन जो कलयुग है, वो कलयुग के बारे में सबसे ज्यादा कलयुग में कैसे रहना है, क्या करना है, वो कली संतरण उपनिषद, है ना। कली संतरण उपनिषद है, जिसमें बताया गया है कलयुग में सिर्फ एक ही तरीका है भगवान को पाने का, वो है नाम का, है ना। अब जैसे अगर आपने रामायण पढ़ी है, रामायण में एक वो आता है, चौपाई आती है, कहता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में सिर्फ एक ही तरीका है इस पूरे भवसागर से बाहर निकलने का, वो है नाम, भगवान का चैंटिंग ऑफ द होली नेम, है ना। तो अ, तो ये हमारे हर जगह बताया हुआ है, हर एक स्क्रिप्चर्स में भगवान का नाम की बहुत ग्लोरिफिकेशन है। नाउ उसमें से भी बहुत से, अब हमें पता है हर एक वेदा में, हमारे तो काली माता के भी मंत्र हैं, दुर्गा माँ के भी मंत्र हैं, शिव गायत्री जी माता के जी भी के है। मंत्र हैं, शिव जी के मंत्र हैं, हर एक देवी देवता के एक मंत्र हैं। इवन देर इज ए मंत्र फॉर लक्ष्मी माँ, देर इज ए मंत्र फॉर इवन पवन, जो भगवान है उनका। और जो इवन मंत्र इज देयर फॉर, क्या बोलते हैं, जितने भी 33 करोड़ देवती देवी देवता ना, सबके लिए कुछ ना कुछ मंत्र हैं, है ना। लेकिन ये सारे के सारे मंत्र हमें कितना बेनिफिट दे सकते हैं, ओनली अप टू अ फिजिकल बेनिफिट। मतलब हमारा जो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो है मटेरियल एग्जिस्टेंस जो है हमारा, उसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं सारे। लेकिन सिर्फ एक ही मंत्र है, इवन हरे जो भगवान शिव का मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्रस। लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र can take you up to the bhakti of Lord. But if you ask him, भगवान शिव शंकर, he wants everyone to become a devotee of the Lord. जैसे मैंने शायद आप लास्ट की क्लास में ही बताया था, देर वॉज अ story where Bhagwan Shivji was giving a class on detachment, and Maya Devi, मतलब जो उनकी जो वाइफ हैं पार्वती माँ, हु इज माया देवी, माया देवी उनकी गोद में बैठी हैं,
and he is giving a class on detachment to all these rishi muni. And then ऊपर से there was a Maharaj Chitraketu who was going with his wives on a plane. He saw this and he smiled, क्योंकि वो पता है कि भगवान शिव के अलावा ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता. He is the most detached personality. He had a lot of awe and reverence for शिव जी. And then पार्वती माँ ने देखा कि मेरे हस्बैंड पे कोई हंस रहा है, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि यू डोंट डिजर्व दिस बॉडी, you should go and become a demon. And then, and as soon as she said that, उन्होंने महाराज चित्रकेतु ने प्लेन में ही खड़े खड़े ऐसे प्रणाम करा, एंड देन ही लेफ्ट. तो पार्वती माँ को और गुस्सा आया, बोले यार ये बंदा कैसा है, कौन है यार ये, जिसको मैंने इतना बड़ा श्राप दिया, इसने ना तो मुझसे कुछ आर्ग्यूमेंट करा, ना ही मुझसे कुछ एक्सप्लेनेशन मारा, चुपचाप हाथ जोड़ के और चला गया. तो उस वक्त भगवान शिव जी कहते हैं, क्योंकि शिव जी इज द वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त जो है ना वो भगवान शिव है. तो शिव जी कहते हैं कि भगवान, फिर शिव जी एक वर्स बताते हैं जो मैंने बहुत बार इसमें कोट करा है भागवत में, वो है नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिब्बति. जो नारायण परा होते हैं, जो भगवान नारायण के भक्त होते हैं, न कुतश्चन बिब्बति, मतलब वो अपने लिए भी बता रहे हैं, है ना. कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, तो मेरे को भी किसी से भी डर नहीं है. विभ्यति का मतलब होता है डर. जो नारायण के जो भक्त होते हैं उनको किसी से डर नहीं होता है. स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शनम. वो क्या है, उनको स्वर्ग में डाल दो, उनको नरक में डाल दो, उनको मृत्यु लोक में डाल दो, कहीं भी डाल दो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. उनको तो पता भी नहीं चलता है वो कहाँ पर है, क्योंकि वो भगवान नारायण के भक्त हैं, है ना. भगवान शिव जी खुद भी ऐसे हैं. तो शिव जी से जब कुछ शिव जी से जब रावण ने बोला था कि मुझे अमरत्व का वो दे दो, तो शिव जी ने बोला मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तुम्हें क्या दे दूं मैं. नोबडी कैन गिव अमरत्व इन अपार्ट फ्रॉम वन पर्सन हु इज भगवान विष्णु. सो और ये बात हमारी हर जगह, विष्णु पुराण में देख लो, शिव पुराण में देख लो, दैवी पुराण में देख लो, दुर्गा माँ की, सब में यही लिखा है ना. और भगवान, तो ये तो हो गया कि जितने भी देवी देवता हैं, कोई सा भी मंत्र कर लो. इवन बुद्धिस्ट चैंटिंग इज वेरी इज पावरफुल, बट इट कैन ओनली हेल्प यू इन दिस फिजिकल बॉडी टू ट्रांसेंड दिस मटेरियल वर्ल्ड अप टू अ सर्टेन स्टेज. इफ यू वांट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड, देयर इज ओनली वन वे टू डू इट, और वो लिखा है कली संतरण उपनिषद में, और उसमें लिखा हुआ है ये मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दिस इज द ओनली मंत्र प्रिस्क्राइब्ड फॉर कलयुगा. अगर हम द्वापर युग में होते हैं, त्रेता युग में होते हैं, या सतयुग में होते हैं, डिफरेंट टाइम्स हैव डिफरेंट वे टू अचीव गॉड, बट कलयुग में देर इज ओनली वन. और उसमें भी हरे कृष्णा महामंत्री इज द ओनली वे दैट कैन टेक यू बैक होम, बैक टू गॉडेड. नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. और बाकी सारे जो मंत्र हैं वो क्या करेंगे आपको, दे विल एक्चुअली हेल्प यू. फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी हैं, हनुमान जी इज ए ब्रिलियंट, लाइक हनुमान चालीसा जो लोग पढ़ते हैं, दे बिकम वेरी वेरी पावरफुल. बट हनुमान जी क्या है, हनुमान जी से अगर हम लोग ये मानेंगे, हनुमान जी जैसे हम लोग क्या बोलते हैं भगवान हनुमान से, हनुमान जी हमें स्ट्रेंथ दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, करो कलेश विकार, जो है ना. जैसे हनुमान चालीसा कैसे स्टार्ट होती है, जय हनुमान नहीं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर हृदय जस, जो जायक फलचारे, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरै पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार. भगवान से उनसे हनुमान जी से क्या मान है, बल बुद्धि और विद्या, देहु में हरहु क्लेश विकार, हमारे सारे क्लेश निकाल दो, है ना. हनुमान जी से अगर हम ये मांगेंगे तो हनुमान बोलेंगे ठीक है ले लो, तथास्तु. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम हनुमान जी से मांगनी है, तो हमें ये मांगना है कि हनुमान जी आप हमें आशीर्वाद दो कि जिस तरह की आप भक्ति भगवान श्री रामचंद्र की करते हो, वो वाली भक्ति का एक छोटा सा अंश हमें मिल जाए. And when people pray to these demigods और देवी देवता, फॉर एग्जाम्पल शिव जी से हम लोग वी कैन मांग, क्या मानते हैं हम लोग, ओम जय जगदीश हरे. और फिर जब हम लोग मानते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का. तो जब हम भगवान से मांग रहे हैं कि हमारा सुख संपत्ति आ जाए, हमारे तन का कष्ट मिट जाए, बस हमें ये चाहिए, जब हम लोग ये मांगते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है ये ले लो. लेकिन अगर हम उनसे मांगेंगे भगवान हमें भक्ति दो, ताकि हमारे कष्ट तो जाए नहीं जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये भव बंधन के जो हमारे जो गोल चक्कर में हम घूमे जा रहे हैं, वहां से हम निकल जाएं. एंड उसके लिए हर एक देवी देवता सिर्फ एक ही जगह पॉइंट करता है, कलयुग में पैदा हो और हरे कृष्णा महामंत्र करो, तभी जा सकते हो. तो ये
कई बार लोग सोचते हैं कि इस्कॉन ने बना दिया है, ये इस्कॉन का मंत्र है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस्कॉन का कोई मंत्र नहीं है, इस्कॉन के कोई घर में बैठाया बनाया हुआ मंत्र नहीं है। इस्कॉन वाले वो मंत्र कर रहे हैं, इट्स ए इंटेलिजेंट थिंग टू डू। जो प्रिस्क्राइब्ड है हमारे वेदा में, हम वो कर रहे हैं। प्रिस्क्राइब्ड क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे उतरे पारा। तो हमें पता है भगवान का नाम लेना चाहिए। अब भगवान का नाम में कौन सा नाम लेना चाहिए जिसके कारण हम लोग ऊपर निकल जाएं? तो उसका हमने रेफरेंस लिया है कली संतरण उपनिषद। क्योंकि कली संतरण उपनिषद में बताया है कि कलयुग के से पार कैसे निकला जा सकता है। और बिकॉज बिकॉज वी आर इन कलयुग, वी लुक एट द सेम रेफरेंस, कली कली संतरण उपनिषद, इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो भी पर्सन जो भी मंत्र कर रहा है ना, उसको वो छोड़ना नहीं है। जैसे मेरी मदर हैं, वो ओम नमः शिवाय रोज करती हैं ना, और वो आई डोंट नो कितनी माला करती हैं, लेकिन वो करती हैं। ठीक है। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हम लोग ये नहीं करते हैं कि हम लोग सब कुछ छोड़ के सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र करें। आप सब कुछ करते रहो, उसमें ऐड कर लो हरे कृष्णा महामंत्र। क्योंकि बाकी सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं, तो वो भी करते रहो, और उन देवी देवता से भी हम सिर्फ भगवान की भक्ति मांगे, प्योर भक्ति मांगे, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि किसी पर्सन से वो मांगो ना जो हमारे अल्टीमेट बेनिफिट का हो। टेम्परेरी बेनिफिट के लिए तो वैसे भी हम लोग मांगते हैं। सपोज मैं एक जैसे कितने सारे लोग थे जिन्होंने टेम्परेरी बेनिफिट के लिए भगवान देवी देवताओं को प्रसन्न करा। हिरण्यकशिपु था, रावण रावण ने भगवान शिव को कितना प्रसन्न करा, अपने एक एक सिर काट के डाले, है ना। लेकिन वो क्या था, सब कुछ टेम्परेरी था, क्योंकि वो भगवान शिव ने उनको कहाँ तक हेल्प करा? सिर्फ बॉडीली प्लेटफॉर्म तक, है ना। उसने ये बोला ही नहीं भगवान शिव मुझे ना भगवान विष्णु की भक्ति चाहिए। क्योंकि अगर वो मांगते तो वो उनकी हेल्प कर सकते थे, क्योंकि एक डिवोटी ही दूसरे डिवोटी को भक्ति का बीज दे सकता है अपने हृदय से। तो अगर वो मांगते तो वो दे सकते थे। लेकिन उन्होंने मांगा ही नहीं। उन्होंने क्या मांगा? मुझे सबसे स्ट्रांग बनना है, मुझे ये बनना है, कोई मुझे मार नहीं पाए, ये वो खूब सारी चीजें मांग ली। उन्होंने बोला तथास्तु, तुम जाओ अपने रास्ते, मैं जाऊं अपने रास्ते, है ना। अब उसी की तरह से हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी का वो करा, और खूब सालों तक वो खड़े रहे, एक टांग पे, एक टांग के अंगूठे पे, है ना। उन ऐसे खड़े थे कि उनके आजू बाजू में चींटियों ने अपना वो घर बना लिया था, हिल नहीं रहे थे वो पूरे। और सारे कीड़े मकोड़ों ने उनके पूरा मांस खा लिया था, सिर्फ हड्डियां हड्डियां बची थी, है ना। फिर भी वो तपस्या कर रहा था। जब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने बोला क्या चाहिए? बोले मेरे को, ब्रह्मा जी भी प्योर डिवोटी हैं हमारे, तो ब्रह्मा जी से भी डिवोशन सर्विस नहीं मांगी। क्या मांगा? मुझे सबसे पावरफुल बना दो, मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुद ही अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें कैसे अमर बना दूं? कुछ और मांगो। बोले अच्छा ठीक है, तुम अमर नहीं बना सकते तो एक काम करो, ऐसा वरदान दो कि कोई मुझे घर के अंदर नहीं मार सके, घर के बाहर नहीं मार सके, हवा में नहीं मार पाएंगे, जमीन में नहीं मार सके, सुबह नहीं मार सके, मतलब दिन में नहीं मार सके, रात में नहीं मार सके, किसी भी हथियार से कोई नहीं मार सके, ना इंसान मार सके ना जानवर मार सके। ऐसे करके खूब सारे सारे वरदान ले लिए। उनको लगा मैंने सारे बॉक्स ठीक कर दिए हैं, अब तो मैं अमर हो गया। लेकिन भगवान आए, उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, उनको मार दिया किसी ना किसी तरीके से। तो व्हाट हैपेंस इज इट वाज अ टेम्परेरी बेनिफिट। सो देवी देवताओं की पूजा करना जो है, अगर हम लोग कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, कीप डूइंग इट, लेकिन ऐड हरे कृष्णा महामंत्र, बिकॉज देर इज नथिंग मोर पावरफुल देन हरे कृष्णा महामंत्र इन दिस कलियुगा, बेस्ड ऑन द रेफरेंस बुक विच इज डिजाइंड फॉर कलियुगा, है ना। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वी शुड स्टार्ट डिसरेस्पेक्टिंग देवी देवता, है ना। कई लोग क्या करते हैं, डिवोटी डिवोटी एसोसिएशन में आते हैं तो अपने मंदिरों मतलब वो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी के मंदिर में घुसेंगे नहीं, अगर गए तो दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, शिव जी को नहीं प्रणाम करेंगे। ये बहुत बड़ी इंसल्ट है, बिकॉज ये जो देवी देवता हैं ये भगवान के भक्त हैं। डिवोटीज की हम अवहेलना करते हैं तो हमारी भक्ति कहीं नहीं जा सकती। अगर हमें डेमिगॉड्स को पूजना है, डेमिगॉड्स का अगर हम लोग का वो है, या फिर देवी देवताओं को हमें पूजना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनसे क्या मांगना है ये ध्यान रखना। क्योंकि डेमिगॉड्स आप जो मांगोगे वो दे देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे आपके लिए अच्छा है कि बुरा है ना। $1 मिलियन चाहिए, मिल गया, लेकिन ये नहीं पता है वो $1 मिलियन आने के बाद हमारी आदतें खराब हो गई, भगवान को भूल गए और गलत रास्ते पे चले गए। तो अगर यही $1 मिलियन अगर हम विष्णु से मांगेंगे, भगवान कृष्ण से मांगेंगे, तो कृष्ण भगवान भी अगर तभी देंगे जब हमारी भक्ति में वो चीज अड़ंगा नहीं डालेगी, है ना। तो इसीलिए क्या मांग रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, किससे मांग रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें अपनी भक्ति आगे बढ़ानी है, तो आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसको करते रहो, ऐड कर लो अपना हरे कृष्णा महामंत्र। हम मैं जानता हूँ एक पर्सन है, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट है वो,
और ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, कीलर पार्क में रहता है। और वो एक बार मैंने उसको बुलाया था, मैं किसी को प्रसाद देने गया था, तो वो वहीं खड़े थे, उससे बात कर रहे थे, पड़ोसी हैं। तो मैं उनको बता रहा था भगवान के बारे में, तो बिकॉज ही इज अ बुद्धिस्ट, ही डजंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस। तो मैंने उसको जब मैंने उसको श्री भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया, बोले ये तो हमारे बुद्धिस्ट की भी टीचिंग सिमिलर है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। तो उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, कौन सी चैंटिंग करते हो, तो मैंने उसको हरे कृष्णा महामंत्र दिया। एंड उसने बोला, देखो मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं अपनी बुद्धिस्ट चैंटिंग नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा करते रहो, ये भी करो। नाउ ही स्टार्टेड डूइंग बुद्धिस्ट चैंटिंग एंड हरे कृष्णा महामंत्र, और नाउ राइट नाउ ही इज चैंटिंग 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। अपनी वो भी उसकी साधना चल रही है, लेकिन हरे कृष्णा भी चल रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, ही इज नाउ एनरोल्ड इन भक्ति शास्त्री कोर्स में, उसने एनरोल कर लिया है, ठीक है। ही हैज शिला प्रभुपाद की लीलामृता उस पढ़ना शुरू कर दिया है उसने। सो ही इज नाउ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ हु इज रियली, बुद्धा, बुद्धा कौन थे। पहले उसको लगा बुद्धा इज डिफरेंट टू कृष्णा एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जब मैंने उसको बताया कि इट्स एन इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, तो देन नाउ ही इज वेरी फेवरेबल। तो all we have to do is add Hare Krishna Mahamantra into our daily sadhana, and that will help, है ना। इससे क्या होगा, we are not insulting anyone, we are not being disrespectful to what we are doing right now, but at the same time we are getting the mercy of the Lord, and the Lord will then guide us कि अभी हमें आगे क्या करना है ना। Does it make sense, रितु माता जी? I'm so sorry, I थोड़ा सा ज्यादा ही वो हो यस गया। यस। It नहीं was नहीं। It was actually नहीं। a very good question, क्योंकि या। it's important for us to understand कि है, क्योंकि मेरे को भी ये लगता था ये इस्कॉन वालों ने बना दिया है, और उन्होंने बना दिया, तो आई एम नॉट गोना फॉलो एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई एम नॉट हम्म। फॉलोइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आई एम फॉलोइंग द वेदांत सूत्र, द एक्चुअल वेदांत सूत्र का। जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, एसेंस है। वेदांत सूत्र हम्म। क्या है, सारे वेदों का एसेंस है। और वेदांत सूत्र का भी जो एसेंस है वही है हरे कृष्णा महामंत्र। और ये हम्म। मेरे को भक्ति शास्त्री करने के बाद, अभी मैं जो भक्ति वैभव कर रहा हूँ, उससे उन इन सारी चीजों पढ़ के मुझे पता चला। एंड दैट्स वाई जो मैंने आपको अभी बताया, इट इज एन एसेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव रेड इन लास्ट 14 years. So that's why it वाह। was a bit longer. But there is more थैंक यू। nuances to it. There are more nuances जो मैं अभी याद भी नहीं आ रहे हैं मुझे। और but I will send you some information जिससे आपको पता चलेगा why we do Hare Krishna Mahamantra only. Um, हम्म। it's not about disrespecting anyone. It's all about जो हमारे prescribed है इस युग के लिए, हम उस बुक को फॉलो कर रहे हैं। और ये बुक इज नॉट रिटन बाय इस्कॉन पीपल और एनी ऑर्गेनाइजेशन इन कलयुगा, इट इज रिटन बाय व्यासदेव हिमसेल्फ, है ना। या। बस प्रभु ऋतु ने पकड़ ली माला। नहीं, अब वो मेरी तो हमने रहेगी। पकड़ी हुई है, वो पहले से ही पहले से ही पकड़ी हुई पकड़ ली है। थी उन्होंने, पहले से ही पकड़ी हुई थी। अब और एफर्मेशन आ गई है उसमें। हाँ, नहीं, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ना हमें, यस। हम लोगों को भी ब्लाइंडली कुछ करना नहीं चाहिए, बिकॉज नाउ देन इट, वन डे अगर हमने उन्हें ब्लाइंडली कुछ शुरू कर दिया, देन व्हाट विल हैपन इज समवन एल्स विल टेल अस समथिंग, एंड वी विल blindly follow that and leave this. Lot of people do that. So करेक्ट। that's why once we have a very solid foundation, then we can respect everyone's opinions, at the same time we know what we need to do on our level as well, है ना। तो जल्दी आता नहीं है तो जल्दी जाता भी नहीं है ना। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, बड़ी मुश्किल से कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं, लेकिन एक बात की गारंटी है, वो जाएंगे कभी नहीं, कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि दे दे नाउ हैव डन लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क, एंड नींव इतनी अच्छी बना ली है कि नथिंग विल टेक देम ऑफ, है ना। एक्सेप्ट फॉर वन थिंग विच इज, इफ यू लीव द डिवोटी एसोसिएशन, देन नो वन कैन प्रोटेक्ट यू। ये मैं आपको बता रहा हूँ। Anyway, so हाँ, so we were talking about कि सो लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्या होते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पैशन एंड इग्नोरेंस। शिला प्रभुपाद जब बता रहे हैं अभी ना, वो कह रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं, दे कैन नॉट सी क्लियरली, एंड जितने भी ये लीडर्स हैं, इनके जो मोटिव्स हैं, दे आर मिक्स्ड। आप सोचो कौन सा ऐसा लीडर है जो पूरी तरीके से जनता के लिए कर रहा है। वेरी रेयरली यू विल फाइंड समवन, है ना। और ये लोग जो होते हैं, ये जो डिसीजंस लेते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स जो डिसीजंस लेते हैं, दे आर ऑल टेम्पररी, है ना।
अब क्योंकि वो खुद ही कंडीशनड है तो डिसीजन भी उनके कंडीशनड होंगे और टेम्पररी होंगे, है ना, और जो उनके सॉल्यूशन होते हैं वो भी इनकम्प्लीट होंगे। अब सोचो, यूनाइटेड नेशन यूएनओ हैज बीन, जब से वो एस्टेब्लिश हुई है उसके बाद दे कुडंट डू एनीथिंग। अभी भी जो कोल्ड वॉर चल रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इतनी सारी सिटीज को बॉम्ब से उड़ाया जा रहा है ना, nobody cares because these क्या बोलते हैं, these leaders they have no idea, because their solutions are what? अरे यार ये तुम लोग अगर बॉम्ब गिराओगे तो हम तुम्हें ना अपने यूएनओ की मेंबरशिप से निकाल देंगे, और हम तुम्हें ना इकोनॉमिकली हेल्प नहीं करेंगे, मत करो। तो क्या हुआ उसके कारण? और प्रॉब्लम हो गई। जो वो सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसकी वजह से चार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, फिर उन चार के लिए प्रॉब्लम बनाते हैं, उससे आठ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो उनके जो सॉल्यूशंस हैं, दे आर टेम्पररी एंड दे आर एक्चुअली इनकम्प्लीट एज वेल, है ना। सो अगर उनका प्लान भी अच्छा है, सपोज किसी ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। एक बार दिल्ली में बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन व्हाट दे डिड इज, सिटी में बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी, तो उन्होंने क्या बोला, मंडे को सिर्फ ऑड नंबर वाली गाड़ियां आ सकती हैं, जिनका ऑड नंबर होता है गाड़ी का नंबर, और जो इवन नंबर वाली गाड़ियां हैं वो ट्यूसडे को आ सकती हैं। ऐसे करके उन्होंने डिवाइड कर दिया। उनको लगा इससे क्या होगा कि हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ओनली आधी गाड़ियां रोज आएंगी। लोगों ने क्या करा, हर किसी ने दो दो गाड़ियां ले ली, एक का नंबर इवन था, एक का नंबर ऑड था। जितनी गाड़ियां पहले थी उससे डबल हो गई, है ना। अभी क्या हुआ, पहले एक ही गाड़ी थी, अब दो हो गई हैं। तो पहले हस्बैंड जाता था तो वाइफ के पास गाड़ी नहीं होती थी, अब दो दो गाड़ियां हैं। तो वाइफ को अगर इधर उधर जाना है, सिटी नहीं जाना है, तो वो दूसरी गाड़ी चला रही है, हस्बैंड दूसरी गाड़ी चला रहा है। तो एकदम से क्या हुआ, पॉल्यूशन जितना कम होना था उससे बढ़ गया। सो दीज आर द सॉल्यूशन। टाइम क्या करता है, इन सॉल्यूशन को भी खराब कर देता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन कलयुगा, व्हेन ए कंडीशनड सोल इज लाइक ए लीडर। तभी बोल रहे हैं, जो सांप के मुंह में खुद ही है वो दूसरों को सांप से कैसे बचाएगा, है ना। अब कई लोग ऐसे होते हैं, लीडर्स थे, हिरण्यकशिपु का मैंने एग्जांपल दिया, कितनी सारी उसने करा। उस पॉलिटिकली ही वाज वेरी गुड, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी थी, वेल्थ उसके पास इतनी ज्यादा थी। मतलब वो हिरण्यकशिपु वाज सो स्ट्रांग दैट व्हेन ही यूज्ड, उसकी ना एक आईब्रोज ऊपर हो जाती थी गुस्से में, तो वहां तो वो पृथ्वी लोक पे है, ठीक है, और यहां पर उसकी आईब्रो ऊपर हुई है, तो स्वर्ग लोक में जो देवी देवता थे छुप जाते थे जाके, कि यार हिरण्यकशिपु को गुस्सा आने वाला है। मतलब दिस इज हाउ उसका खौफ इतना ज्यादा था, इतना पावरफुल था वो, है ना। लेकिन क्या हुआ, उसने कितने सारे अपने वरदान मांगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द ही डाइड। काल, समय हैज किल्ड हिम, मतलब भगवान ही समय है ना। रावण रावण के साथ क्या हुआ, उसने इतनी सारी पावरफुल थी, सेम चीज धृतराष्ट्र के साथ। अभी देखो धृतराष्ट्र, ही वॉज द किंग ऑफ द होल प्लेनेट एट ए टाइम, है ना। अभी उसने क्या करा, अपने बच्चों को बचाने के लिए कितनी सारी वो करी, कितनी सारी प्लानिंग करी, उनको कितने बार मरवाने के लिए कोशिश करवाई, है ना। इवन जब सारे बच्चे मर गए, भीम को मारने की भी कोशिश करी, सब कुछ करा, लेकिन क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु, सब लोग मर गए, है ना। गांधारी, गांधारी ने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या के बाद उनको 100 बच्चे हुए, लेकिन सारे के सारे निकल गए। काल, समय था, उन्होंने सारा कुछ निगल लिया, है ना। अब मॉडर्न एग्जाम्पल अगर आप देखो जाए, इसी चीज को देख के हमारे पास, हमारा देश किस में इन्वेस्ट करता है, हेल्थ सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, सेफ्टी में, आर्मीज में, इकोनॉमिक्स पे, साइंस पे, है ना। अब सोचो, हेल्थ सिस्टम में इतनी सारी चीजें उन्होंने करी, पैंडेमिक फिर भी आया, सारा का सारा, जितनी भी उन्होंने वो करी थी, एडवांसमेंट था, सारा सारा का सारा धरा का धरा रह गया, एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड, ठीक है। अब आर्मीज इतनी सारी है, सेफ्टी की इतनी सारी चीजें करते हैं, वॉर अभी भी हो रहे हैं, है ना। ठीक है, इकोनॉमिक्स पे इतनी सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, हमें पता है इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, वी नो एवरीथिंग, वी हैव सच अमेजिंग इंटेलिजेंट पीपल ऑन रियली हाई पोस्ट, बट फिर भी इकोनॉमी क्रैश होती है कि नहीं होती है? इट हैपन्स बिकॉज हु डज इट? मृत काल, है ना। फिर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ वी स्टार्टेड डूइंग सीडिंग ऑफ द क्लाउड। भाई बारिश नहीं हो रही है तो क्लाउड पे सीडिंग कर दी, तो वहां से बारिश करवा दी, इतना भी हमने कर दिया है। फिर भी सूखा पड़ता है नहीं पड़ता है? पड़ता है। बाढ़ आती है नहीं आती? आती है
है ना, नेचुरल डिजास्टर्स होते ही हैं, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल दीज थिंग्स, है ना। बिकॉज काल को कोई वो नहीं कर सकता, है ना। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर यूज करा है कि एक सांप के, अगर आपको सांप ने काट लिया है, आप किसको पहले कैसे बचाओगे किसी को? इफ यू आर इन द, यू आपको ही सांप ने पकड़ रखा है, आप किसको कैसे बचाओगे? पहले तो खुद को बचाना है ना। अब ये जो इमेज, ये जो ये एनालॉजी है वो कहाँ से आ रही है? अ मैन बिटन बाय डेडली कोबरा, दैट मीन्स ही इज लूजिंग कॉन्शियसनेस, खुद की ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। आप सोचो, ब्रीदिंग तो काम तो छोड़ो, वो एक पानी का ग्लास नहीं पकड़ पाएगा अपने हाथ में। अगर डेडली कोबरा ने उसको काटा है, थोड़ी देर में 5-7 मिनट में ही विल डाई, नथिंग कैन सेव हिम, है ना। जैसे, और क्या कॉन्शियसनेस भी उसकी जा रही है, इसी तरीके से हम लोग हैं, हम लोग वी आर इन वी आर डाइंग एवरी मोमेंट, है ना। हम लोग डिके हो रहे हैं, हम लोग वनरेबल हैं, हम लोग डिटीरियरेट हो रहे हैं। ये जो मटेरियल बॉडी है हो ही रही है। हम इस मटेरियल बॉडी से किसी और को कैसे बचा सकते हैं? है ना, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू, you know make sure that we don't get this poison. What is the poison? Poison is ignorance. ये ignorance का poison अगर हमें नहीं मिलेगा, अगर हम भी ignorance में, हम किसी को क्या सिखाएंगे? So we have to first of all get rid of this poison of ignorance through bhakti, and then once we are cured, then we can start helping people, है ना। एंड देन इफ यू थिंक अबाउट इट, आपने भगवत गीता में भी 10 पॉइंट, जैसे अब शिला प्रभुपाद कौन कौन से वर्ष का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ही इज गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ भगवत गीता 14.26, है ना। 14.26 में इट सेज, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ही सेज, one who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the mode of material nature. There is nothing else, no other thing is required. है ना। अगर हम भक्ति में जाते हैं, then we can easily get rid of गुण and कर्मा दोनों, है ना। काल, कर्म और गुण तीनों से पार पा सकते हैं अगर हम भक्ति में जाएं तो। दिस इज सेड बाय इन भगवत गीता। देर इज 10.34 था कि क्या था? भगवत गीता, आई थिंक भगवत गीता 10.34, आई थिंक दिस इज द वर्स, मृत्यु, जिसमें भगवान कहते हैं कालोस्मि। हाँ, यही है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, है ना। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, उद्भावश्च भविष्यताम, कीर्ति शिवार्च नारीणाम, स्मृतिर्मेधार भृति क्षमा। आई एम ऑल डिवाउरिंग डेथ, भगवान खुद ही कह रहे हैं, है ना। मैं ही हूं, आई एम मी, आई एक्चुअली गेट, आई डिवाउर एवरीथिंग। उन्होंने अर्जुन को दिखा दिया था, व्हेन अर्जुन वाज सेइंग दैट आई एम नॉट गोना फाइट, तो भगवान ने बोला ये तो सब मरने ही वाला है, आई एम गोना डिवाउर एवरीवन एनीवे। If you want to be the instrument, you can be the instrument, otherwise these guys are gonna die anyway. So this is one of the counter argument that Krishna is gonna give in Bhagavad Gita, जो हमारी भक्ति विक्षा में चल रहा है। But that's what he meant in there. And then, and 14.26 हमें पता है ना। So we need to understand that bhakti will free us from kal, bhakti will free us from karma, and bhakti will free us from guna, है ना। But if everyone is, if no one is actually is thinking of Krishna, if we are not taking help of Krishna, then we will not be freed for any of these things. There is another verse in there which is 10, I think 3.27, Bhagavad Gita 3.27, I think. यस, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते हैं। हमें क्या लगता है, प्रकृति, ये जो प्रकृति क्या करती है? क्रियमाणानि, सारा काम कर रही है, कैसे कर रही है? गुणे कर्माणि, गुण और कर्म के हिसाब से सारी चीजें चला रही है वो, है ना। कौन चला रही है? प्रकृति। लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग इतने अहंकारी हैं, और विमूढ़, विमूढ़ का मतलब होता है बेवकूफ हैं, इतने अहंकारी हैं, इतने बेवकूफ हैं कि हमें क्या लगता है? हम हैं कर्ता, कर्ता अहम इति मन्यते, हम कर्ता है। और ये यहाँ संधि विच्छेद है, इसके बाद कर्ता के बाद कर्ता अहम, और फिर ये जो मिति है ये म अहम इति है,
म के बाद इति है, इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ता कर्ता अहम इति मन्यते। अब आप सोचो कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है गुण और कर्म के हिसाब से, लेकिन हमें लगता है हम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर शिला प्रभुपाद खुद ही बता रहे हैं अपने उसमें। ठीक है, तो सारे के सारे जो एक्शंस हैं हम लोग जो लेते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, गुण के हिसाब से, लेकिन हमें लगता है कि हम कर रहे हैं सब कुछ। तो बिना कृष्णा के अगर हम कुछ भी सोशल करेंगे, पॉलिटिकल करेंगे, फिलंथ्रोपिक इफेक्ट करेंगे, इट विल लीड टू डिल्यूजन, है ना। कोई सी भी अच्छी एक्टिविटी कर लो, अगर हम उसमें कृष्णा को नहीं जोड़ेंगे, भगवान को नहीं जोड़ेंगे, भगवान का कनेक्शन नहीं है जहां पर, वो सारा का सारा हमें एक ही जगह ले जाएगा, वो है डिल्यूजन, है ना। सो अब श्रीमद् भागवतम हमें बताता है कि एवरीबडी इज हेल्पलेस बिफोर टाइम, इवन द सन कैन नॉट प्रोटेक्ट द फादर, नॉट द फादर कैन प्रोटेक्ट द सन, है ना। और ये 1.16.24 में भी बताया है श्रीमद् भागवतम 1.16.24। हाँ, इदं मामच्छ तवाधिमूलं वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिना बलियसा सुरार्चितं किं हृत्तमं सौभागम्। Mother, you are a reservoir of all riches. Please inform me the root cause of your tribulation by which you have been reduced to such a weak state. I think that the powerful influence of time, which conquers the most powerful, might have forcibly taken away all your fortune, which was adored even by demigods, है ना। तो यहां पर बता रहे हैं कि सिंपल सी बात यह है कि द दैट सो काल काल इज डिस्क्राइब्ड एज ए serpent that whose movements bring inevitable destruction. The only thing that can cut the fangs of this snake called Kal is bhakti, है ना। And then 6 point, the fear of death disappears only through chanting. Ajamil के साथ क्या हुआ, when Ajamil saw the when Ajamil chanted the name of Narayan at the time of his death, विष्णु दूता came, and विष्णु दूता और यम दूता दोनों में बहुत बहस हुई कि भैया इसको हमें नरक में ले जाना है। उन्होंने बोला नहीं, नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने नाम ले लिया है भगवान का मरते वक्त, तो ही हैज टू, है ना। बहुत सारी बहस हुई, लेकिन उस बहस में सबसे अच्छी क्या हुआ, अजामिल का जो डेथ का फियर था वो निकल गया, बिकॉज ही स्टार्टेड चैंटिंग द होली नेम आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, he became a very good devotee. He started chanting the name of the Lord, and he went back home, back to Godhead after that, है ना। एंड यहाँ पर शिला प्रभुपाद एक और बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं कि इवन इफ वी आर एबल टू डू समथिंग टेम्परली बेनिफिशियल, टाइम विल सी द गुड प्रोजेक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड विद द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे मैंने दिल्ली का बताया, है ना। एंड देन एट द एंड ही सेज द हाईएस्ट प्रोफेशनल project of philanthropic activities is to engage everyone in the act of preaching bhakti yoga all over the world. Why? Because only bhakti yoga can save people from the control of Maya. There is nothing else. है ना, देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान कहते हैं मेरी माया है, ये मेरी एनर्जी है, ये इतनी पावरफुल है, कोई इससे पार नहीं पा सकता। लेकिन सेकंड वर्स में कहते हैं माँ में वे प्रपद्यन्ते, जो मेरे को समर्पण करता है, माया एताम तरंतिते, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। And that's why we have to understand that if we want to get out of control of Maya, there is only one way, which is bhakti, है ना। अभी धृतराष्ट्र के साथ क्या हुआ, धृतराष्ट्र वो अपने आप को नहीं बचा पाया, रावण रावण था, है ना। रावण नहीं बचा पाया। कौरवों के साथ क्या हुआ, उनका कर्म बेकार था, उनके कर्म से वो बेकार थे, गुण तो उनके रजस और तमस में थे, और टाइम, क्योंकि उनके ये दोनों खराब थे, तो टाइम ने भी उनकी ऐसी ऐसी कर दी थी, है ना। अर्जुन को कृष्णा उद्योग पर्व में कहते हैं ऑल द वॉरियर्स आर ऑलरेडी स्लेन बाय टाइम, यू आर मियरली एन इंस्ट्रूमेंट, है ना। भगवत गीता में आता है, भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सब साची, निमित्त मात्र बनो तुम, मैंने सबको मार दिया ऑलरेडी, है ना। टाइम एज ए इन टर्म्स ऑफ टाइम आई एम गोना किल देम एनीवे, सो यू किल देम, टेक क्रेडिट, establish dharma, teach people how to deal with the situation like you are in, and you become the instrument and help people get into bhakti,
है ना। अब द हाईएस्ट शिला प्रभुपाद ने पहले ही बोल दिया कि हाईएस्ट फिलोंथ्रफी इज प्रीचिंग भक्ति योगा, है ना। और उसका रीजन ये है कि हम लोग किसी को खाना खिला देंगे, उसका टेम्परेरीली पेट भर जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी को जॉब दे देते हैं तो उसका थोड़े दिन और उसका पेट भर जाएगा, मे बी उसके बच्चों का भी पेट भर जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम किसी को भगवत गीता देते हैं, चैंटिंग द होली नेम देते हैं, उनको भगवान से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, वो भले ही इस जन्म में उसका मटेरियल चीजें भले ही नहीं सॉल्व हो, लेकिन स्पिरिचुअली हु विल गो बैक होम, बैक टू गॉड। लेकिन क्या होता है भक्ति में, व्हेन पीपल गेट इनटू भक्ति ना, अगर हमारे लिए कंड्यूसिव है तो वी विल गेट लॉट ऑफ ऑपुलेंस एज वेल भगवान की तरफ से, ओनली इफ इट्स कंड्यूसिव टू अस, है ना। सो इसीलिए भक्ति योगा इज मच बेटर बिकॉज इट लिबरेट्स द सोल, एलिवेट्स द कॉन्शियसनेस, कट्स द साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ, है ना। एंड इट विल ट्रांसेंड कर्मा। भक्ति योग क्या करेगा, हमारे कर्मा भी काटेगा, और कर्म वो जो गलत काम करने की जो प्रोपेंसिटी है वो भी काट देगा, है ना। दैट इज माय नारद मुनि को क्या बोला जाता है, सबसे बड़ा फिलोंथ्रपिस्ट, है ना। फिलोंथ्रपी हमें लगता है सब लोगों को कपड़े देना, खाना देना, वो क्या बोलते हैं, अनाथ आश्रम बनवाना। ये बहुत अच्छी चीज है ना। आई एम नॉट सेइंग वी शुड नॉट डू इट, पीपल शुड डू इट, बट डू इट एज ए कृष्ण। अगर आपको अनाथ आश्रम बनाना है, ऐसा अनाथ आश्रम बनाओ जहां पर बच्चों को भक्त बनाने का एजुकेशन मिले, उनको पेट भी भरे उनका, उनको रहने के लिए अच्छा सेफ जगह भी मिले, बट एट द सेम टाइम उन्हें वो नॉलेज भी मिले जो उन्हें इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करेगी, है ना। प्रहलाद महाराज वो भी ग्लोरिफाइड है, क्योंकि प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे, 5 साल की उम्र से ही वॉज प्रीचिंग टू हिज फ्रेंड्स इन स्कूल, है ना। और चैतन्य महाप्रभु तो थे ही पतित पावन, ही इज ए गॉड हिमसेल्फ, है ना। सो एक्चुअली इन टुडेज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन इनकम्प्लीट है। फूड वाटर सेफ्टी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके उनके साथ में वी नीड टू गिव देम कृष्णा एज वेल, because when we give them krishna, what we are doing is we are getting rid of their anxiety, depression, disease, and a fear of old age, fear of death. All of these we are removing, है ना। And we are getting people into slowly from tamogun to rajogun to satogun, from satogun to all the way to shuddha sattva. And that's why a drowning man cannot save another drowning man, but the man on the boat can pull others out. और जो भक्ति है, भक्ति इज दैट बोट, है ना। ओके, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू शेयर? यस यस, ललित प्रभु, रुचिता माता जी। प्रभु जी, आपने कहा कि ऑल द युगर्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग टू गॉड, राइट? हम्म, एंड इस युग में सिर्फ नाम है। दैट्स करेक्ट। So that means if it was Dwapar Yuga, it would have been like something else, not अर्चना, Nam. ये अर्चना, पूजा अर्चना, द्वापर में पूजा अर्चना थी। तो और वो तो- सतयुग में था, आई थिंक सतयुग में क्या था, आई थिंक इट वाज अदर तपस्या, या फिर एक सेकेंड, सतयुग में तपस्या था, त्रेता युग में यज्ञ थे, यज्ञ, है ना। और द्वापर युग में अर्चना, एंड कलयुग में हरि नाम। तो प्रभु यहाँ मतलब ऐसा है कि इट्स एक्सक्लूसिव, लाइक अगर हम खाली भगवान का नाम ले रहे हैं तो ही हम जाएंगे, बाकी अगर खाली कुछ और करे तो नहीं होगा, मतलब वी नहीं, हैव टू टेक नेम ऑफ गॉड। यस दैट्स करेक्ट, विदाउट द होली नेम यू हैव तो नो चांस। या सो दैट मीन इवन द्वापर युग में जो था वही पॉसिबल होगा, मतलब अगर दैट्स करेक्ट, द्वापर युग अगर में अगर आप जैसे द्वापर युग में हरि नाम लोगे, इट वुडंट वर्क एज मच एज इट अर्चना पद्धति विल वर्क। प्रभु, व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज आप अजामिल का हमेशा एग्जाम्पल देते हो, वो तो इस युग में है नहीं। हाँ, वो तो द्वापर युग या वट एवर युग ही वुड हैव बिलोंग टू, उन्होंने तो बस नाम लिया था नारायण का एंड ही। नहीं नहीं, he was not in the upper ego rest. He was in part, no, he was not part of Kali Yuga.
I'm not too sure, but what happened is he chanted the name of Narayan. Yeah, actually, good question. Let me find out. मेरे को you're right. He was not part of. But Maybe Prabhu, he was before part of falling Kali Yuga. down, also he did lot of bhakti and he did lot of. He was living a Brahminical नहीं life. नहीं, I think he was part of Kali Yuga, wasn't he? I can't remember. ये क्योंकि मैं पता करूंगा इसका, हाँ you're right. जी बट प्रभु, मुझे भी लगता है वो कलयुग में ही हुआ है ये, हाँ, प्रभु जितना भी मैंने स्टार्ट है। ऑफ इतना कलयुग. पढ़ा है कि वो कलयुग में नहीं है, वो द्वापर युग में। आई जस्ट रेड इट, आई डोंट नो इफ इट्स दैट ओके, राइट कुड और बी रॉन्ग। कुड बी अगर वो द्वापर युग में है तो देन आई विल फाइंड आउट व्हाई इज. ये भी हो सकता है कि चैंटिंग द होली नेम इज इज वैलिड इन एवरी युगा, इन एवरी युगा। but all the other paddhatis are only valid in those yugas. ओके, जैसे यज्ञ है, दैट्स हम व्हाट आई लोग वांटेड यज्ञ टू करते नो। हैं ना, अभी यज्ञ. यज्ञ इज नॉट दिस इस जन्म का नहीं है यज्ञ, है ना, मतलब हम्म। इस युग का नहीं है यज्ञ. यज्ञ करना और ये जो योग पद्धति जो होती है, जो नॉर्मल योग पद्धति होती है वो करना, तपस्या जो होती है वो करना, ये अलग अलग युग के हैं. लेकिन कलयुग में सिर्फ कलयुग केवल नाम आधारा. जी प्रभु, और जैसे बताया कि भगवान राम के नाम लिखने से वो पत्थर चले, वो तो हाँ त्रेता युग में ही थे। हाँ तो हाँ हाँ, नाम की प्रभाव तो है बिल्कुल ही सही, बिल्कुल सही. हर हमेशा। हर युग में है। मेक सेंस, मेक सेंस, जी मेक सेंस. हम्म। है ना, तो ये नाम हर एक जन्म में रहता है, लेकिन कलयुग में सिर्फ नाम है. देर इज नो राइट। अदर वे ऑफ डूइंग इट. अगर नहीं, कोई कुछ भी काम करो अगर नाम उसके साथ नहीं है तो नथिंग विल वर्क. है ना. रेचा माता जी, आपका क्वेश्चन. प्रभु, तो इसका मतलब इस युग में, हम कलयुग में जैसे कुछ भी इस हवन और ये सब पूजा प्रष्ठान वगैरह कर रहे हैं, तो इन हाँ, सब की कोई वैल्यू नहीं है मतलब? इनकी वैल्यू तभी है जब उसके साथ में हरि नाम हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यज्ञ करते हैं ना, अगर हम यज्ञ करें, बहुत अच्छा सा यज्ञ करें, लेकिन अगर उस यज्ञ में शुरू में एंड में और साथ में अगर हरि नाम नहीं चल रहा है तो कोई फायदा नहीं है उसका, जीरो. क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है, वो कहते हैं उसमें है, मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम देश काल अरु वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुकीर्तनम तवा. श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं मंत्र, अभी कलयुग में स्पेशली मंत्र में अशुद्धि हो सकती है. क्या होता है, यज्ञ जब करते हैं उसमें जो मंत्र उच्चारण होता है, अगर उसमें हमने थोड़ी सी भी त्रुटि कर दी, थोड़ी सी भी गलती कर दी, इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट. सो मंत्र में अगर गलती है, अगर हम तंत्र मतलब जो हम सेटअप करते हैं उसमें गलती है, देश में जिस जिस जगह पर बैठ के, जिस जगह पर बैठ के हम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम बैठ के वो यज्ञ कर रहे हैं उसमें भी गलती हो सकती है, देश काल जिस समय कर रहे हैं उसमें भी गलती हो सकती है, और वस्तु जो हम चीजें यूज कर रहे हैं उसमें भी गलतियां हो सकती हैं. जैसे यज्ञ में सोने के बर्तनों के अलावा कोई बर्तन नहीं यूज होना चाहिए, है ना. अब हमारे पास कहाँ सोने के बर्तन है, तो और जो हमारा जो घी है वो भी प्योर नहीं है ना. हम जो चीजें कर रहे हैं हमारे पास सब चीज इम्प्योर है. तो कहते हैं मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम देश काल अरु वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम. सारी चीजों को निश्चिद्र कर दे, सारी की सारी जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है सब हटा देता है. अनुसंकीर्तनम तवा, आपका जो संकीर्तन है, भगवान का जो होली नेम जब चलता है ना, तब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं. जैसे मेरा इनिशिएशन हुआ था, इनिशिएशन जो भी होते हैं उसमें क्या होता है, यज्ञ होता है बहुत बड़ा, उसमें सारी आहुतियां डाली जाती हैं ना, लेकिन चारों तरफ बैठ के लोग या तो कीर्तन कर रहे होते हैं और भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं. भगवत गीता का पाठ चल रहा होता है, दो लोग भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा सा लाउडली, और बाकी सारे लोग कीर्तन कर रहे होते हैं. और जब शुरू में कीर्तन होता है फिर यज्ञ होता है, फिर बाद में वापस कीर्तन होता है. जब हम कीर्तन करते हैं तो सब कुछ, सारी की सारी जो गलतियां हैं ना, सारी एकदम ठीक हो जाती हैं. तो अभी जैसे हम लोग सत्यनारायण भगवान का यज्ञ करते हैं, है ना, यज्ञ होता है, कथा होती है. अगर सत्यनारायण की कथा से पहले और बाद में हम कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा का जो फल है, इट इज नॉट देयर, है ना. और सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, अगर आपको उसको उसमें बहुत डीप में सुना जाए तो उसमें सिर्फ एक ही चीज की वो दी जाती है कि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, सुखी जीवन बिताना है और अंत में हमें भगवत धाम जाना है. लेकिन ये नहीं बताते हैं उसमें कि वी नीड टू डू प्योर डिवोशनल सर्विस टू इन ऑर्डर टू गो बैक होम, बैक टू गॉड. इसीलिए कोई सा भी यज्ञ जो होता है, मुंडन यज्ञ है, कोई सा भी यज्ञ है, सारे बेकार हैं अगर हम लोग संकीर्तन यज्ञ नहीं कर रहे हैं साथ में. मेक वो सेंस. इस चीज का तो फिर मेरे को लगता है कि बखान और उतनी
महिमा या नॉलेज ही मैं कहूँ तो नहीं है लोगों को। आई डोंट थिंक सो नहीं है ना। पीपल नो और अंडरस्टैंड। तो मतलब जो ये पंडित हैं जितने सब हैं वो जो ये करते हैं, दे डोंट नो इवन यूज, टॉक अबाउट इट। एब्सोल्युटली नो यूज। तो वाओ। आपको क्या लगता है कलयुग का जो वो चल रहा है अभी, पहले क्या होता है जो ब्राह्मण ये सब काम करने आते हैं ना, दे डोंट इवन टेक, दे आर नॉट सपोज टू आस्क फॉर मनी। अभी क्या होता है, पहले डिसाइड होता है कितने पैसे दोगे, उसके बाद पंडित आते हैं। ठीक है। पंडित क्या होते हैं, ब्राह्मण जो होते थे जो यज्ञ करते थे, देवर परफेक्ट, उनका मंत्रोच्चारण भी परफेक्ट होता था, उनकी नॉलेज ऑफ वेदास परफेक्ट होता था। तो पहले जब लोग आते थे, वो क्या करते थे, सबसे पहले कीर्तन करेंगे, सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, और उनको पता था ये जो हम श्लोक बोलते हैं भगवत गीता में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ता राम, सारे सारे के सारे यज्ञ है उनका एक ही भोक्ता है, वो है भगवान शिव। ओ सॉरी, भगवान विष्णु एक ही है ना हम्म। सर। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। तो ये जो श्लोक है ये सारे ब्राह्मणों को पता होता था। अब आप ब्राह्मणों से पूछ लो डिफरेंस बिटवीन श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, तो बहुत कम लोगों को पता है। मंत्र को तो छोड़ ही दो, मंत्र उनसे हम्म। पूछो, मंत्र वो आधे आधे मंत्र खा जाते हैं, है ना। उनका मंत्रोच्चारण तो छोड़ो, मंत्र ही नहीं पता है उनको। अगर मंत्र पता भी है तो उस मंत्र को कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी वो नहीं पता है, और उनकी कमियों को कैसे पूरा करना है वो नहीं पता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, उससे कोई फल नहीं मिलने वाला है। इट इज ए यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन ये जो नॉलेज है, ये हमारी जो नॉलेज है, क्योंकि अभी ब्राह्मणत्व नीचे नीचे जा रहा है, ब्राह्मण की जो वो है वो नीचे जा रहा है। अभी जो ये लोग ब्राह्मण, कई लोग होते हैं जो पंडित हैं, वो आएंगे शादी करवा के जाएंगे, और शादी करवाने के बाद वो सब लोगों के साथ वहीं बैठ के दारू पियेंगे, है ना। अब दैट्स नॉट द कंडक्ट ऑफ ए ब्राह्मणा, है ना। वो अगर इस शादी में तो कभी नहीं देखा मैंने कोई कीर्तन होता हो, किसी शादी में नहीं देखा। हाँ, तो वो जो शादी का जो संस्कार है, यज्ञ है, इट इज हम्म। यूजलेस। लेकिन क्या होता है, लेकिन आपको बताऊं ना, कुछ आहुतियां उसमें डाली जाती हैं भगवान विष्णु की, है ना, अपने शादियों में हम्म। भी। तो अगर वो जिन लोगों को पता है, वो लोग क्या करते हैं, वो भगवान विष्णु के जो सहस्त्र नाम है, वो एक जने को बोल के पढ़वाते रहते हैं साइड में। लेकिन उनको ये जो मंत्र है ये पता है नहीं, पता है नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मुंडन संस्कार होता है यहाँ पर काफी सारी जगह, सिर्फ इस्कॉन में ही मैंने देखा है, मुंडन से पहले कीर्तन होगा, मुंडन के टाइम कीर्तन होगा, मुंडन के बाद कीर्तन होगा, पूरा यज्ञ होगा, उसके बाद वापस कीर्तन होगा। ये सारी चीजें सिर्फ मैंने इधर ही देखी हैं, क्योंकि जो नॉलेज है यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट नॉलेज है ना। इसमें कोई वो नहीं है, एवरी अदर नॉलेज दैट यू सी, उन्होंने नॉलेज कैसी बनाई है, टू अर्न मनी। लेकिन ये जो नॉलेज है, इट्स ओनली टू डू विद कृष्णा। हाउ कैन हम्म। मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस बैड बार्गेन ऑफ कमिंग इन टू दिस मटीरियल हम्म। वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ हिपोक्रेसी एंड डिसीट। तो उसमें जीने का एक ही तरीका है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटली अंडर यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। और बिना कीर्तन के कुछ नहीं करने का, हरे कृष्णा महामंत्र, जैसे मैं भी कभी कभी जाता हूँ, जैसे इवन मैं किसी के चर्च में किसी का वो था, वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, बैप्टिज्म। तो मैं वहां पीछे खड़ा होकर हरे कृष्णा कीर्तन कर रहा था अकेला, है ना, थोड़े ऑडिबल उसमें। क्योंकि मुझे पता है कि व्हेन आई डू दिस हाँ। दे आर डेडिकेटिंग देयर चाइल्ड टू जीसस क्राइस्ट, है ना। सो इफ आई चैंट द होली नेम, दैट यज्ञ, वट एवर दे, इनका डिफरेंट तरीका है यज्ञ करने का, दैट यज्ञ विल बी परफेक्ट। इट विल रीच परफेक्शन इफ देर इज ए होली नेम chanted in हाँ। the vicinity. वेरी नाइस। So we should tell people this, but we should not tell people trying to make people feel that they don't know, या। है ना। जैसे मैं क्या करता हूँ, आई नेवर एवर टेल एनी ब्राह्मण और पंडित कि आप ये मत करो वो करो। मैं क्या करता हूँ, मैं उनको सब लोगों को बोलता हूँ कि पंडित जी थोड़ा 2 मिनट कीर्तन कर लें, ये 30 सेकंड हाँ। कीर्तन कर लें, बस दैट्स इट। आई डोंट टेल या। दैट दे डोंट नो, आई डोंट टेल देम कि इसके बिना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दे वोंट एक्सेप्ट इट, दे वोंट लाइक इट, एंड मे बी अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो दे आर हियरिंग द चैंट होली नेम एज वेल, दे माइट चेंज एज वेल। सो वी शुड डेफिनेटली propagate this thing, but in a very sensitive manner, है ना, having जी। respect to these people who are, no matter why how they are doing it, but they are still ignorant, so we can't blame them for their own ignorance. We should subtly, अपना एजेंडा रख करवा लो उनसे, है ना, बट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वी डोंट वांट टू डू अपराध एज वेल टू दिस, you know whatever, like, I don't know what kind of brahmana they are, but we should not insult them, we should not be या। yeah.
आई होप दैट मेक सेंस, है ना? यस यस प्रभु, यस प्रभु। उस दिन हम टेम्पल गए थे, वहां पे आरती चल रही थी और एक छोटा सा बेबी किसी ने अपनी गोद में उठा रखा था। और मैं हम्म। उसको देख के बोल रही थी, आ गई फिर से ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल करने। मन के अंदर मेरे यही निकला प्रभु, उसको देख के। इतना छोटू सा बेबी था वो, और मेरे को लगा मजा लो आ गया। फिर से आ गई, फंस गए तुम। आगे चलो अब। वापस वापस। बट अभी गुड स्टार्ट हो रही है तुम्हारी, तो आई होप यू गेट द लिबरेशन, बट क्योंकि वो यू नो टेम्पल में थी। देयर वाज ए मोमेंट, जब ना, when it's a sensitive thing, but when my daughter passed away ना, तो एकदम से when हमारे यहाँ पर प्रेयर सेरेमनी थी, और गंगेश्वर प्रभु ने हवन कराया था पूरा ना, ये उसका नरसिम्हा यज्ञ करवाया था। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा लेक्चर भी दिया था। उस लेक्चर में उन्होंने बोला कि दैट्स इट, द द ट्रैवल इज ओवर। तो मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए आया था, है ना, मेरी बेटी का नाम था इजाबेला मालती, है ना। तो मैंने कहा इजाबेला मालती निकल लिया है ना। हम्म। बैग अच्छा हुआ निकल लिया, जगह है ही नहीं रहने लायक, इट्स ए गुड थिंग। लेकिन स्टिल पेनफुल, उस वक्त भी पेनफुल था, लेकिन एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया था ये। और ये आपने बिल्कुल सही बोला। मैंने भी 3-4 दिन पहले मैं किसी को ये देख रहा था, उनके जब बच्चा पैदा हुआ था ना, तो उनको मैं देख के कह रहा था, ये देखो आ वापस आ गए, है ना, वापस वही साइकिल में। पता नहीं एकदम से मेरे मन में क्यों ऐसे आए, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल करने आ गई तुम भी फिर से। चलो। बट या, ओके, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। एंड आई थिंक इट्स ए वेरी गुड, जो क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं ना, उसमें बड़ा अच्छा चर्निंग हो जाता है सब्जेक्ट मैटर का। वरना क्या होता है कि उसमें निकल जाते हैं हम लोग, यू नो पढ़ लिया, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लिया, मोस्ट ऑफ द थिंग दैट वी डिस्कस वी नो, है ना। लेकिन ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं, उसके कारण जो नगेट्स निकल के आते हैं, उससे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये तो कॉन्सेप्ट बहुत समझ अच्छी लगता है। नॉलेज थी प्रभु कि आई डोंट थिंक सो, हमें भी पता थी ये बात, ऑल्दो वी हैव बीन लिसनिंग हाँ टू दिस कि पहले, अब तो मेरे को ऐसा लगता है जब कभी हम भी कहीं पे होंगे, तो जो आप कह रहे थे ना पीछे खड़े होके, यू कैन हाँ हाँ स्टिल चैंट द होली नेम, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। हाँ। सो थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू रुचिता माता जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये तो बहुत ही अच्छी नॉलेज निकल के आई है आज। हम्म। और क्वेश्चन से ही आती है वो, क्वेश्चन क्वेश्चन से है। बट रुचिता माता जी, आई फाइंड आउट अबाउट मोर अबाउट अजामिल पास टाइम को कब हुआ था, क्योंकि Yes, इट्स वेरी Prabhu. क्यूरियस, आई एम क्यूरियस अबाउट इट। बट आई थिंक होली नेम इज वैलिड एवरी युगा, बट इन Yeah, दिस I युगा have a नथिंग feeling एल्स it इज should वैलिड, be. है ना? Yeah. Hmm. आई No, थिंक, but I have a feeling it should be in all the yeah, yugas. I think you're right, it should be valid on every yuga, but this yuga nothing else is valid, ये Right. nothing else is pure enough to be, हम्म, you know कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर हाँ, सिमर नर उतरे नर पारा। उतरे पारा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए तो है प्रभु। पर ये जैसे अब मैं भी, हम लोग इतना कीर्तन तो नहीं करते, पर जैसे टीवी में लगाया होता है तो उसके साथ साथ चलता रहता है हमारे यहाँ कुछ ना हाँ कुछ। बस ठीक है, कीर्तन तो आप लोग मुंह से हरे कृष्णा महामंत्र 3-4 बार बोल दो, हो गया कीर्तन। ये कीर्तन का मतलब ये नहीं कि आप 3-3 घंटे आप सिर्फ वो कीर्तन कर रहे हो। कीर्तन का मतलब हम लोगों को लगता है, क्योंकि हमने वैसा ही कीर्तन देखा है। कीर्तन का मतलब क्या है, आप सुबह पूजा कर रहे हो ना, कोई सी पूजा कर रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बस ऐसे एक बार पूरा मंत्र पढ़ लिया, 2 बार पूरा मंत्र पढ़ लिया, डन। क्योंकि इतना पावरफुल है ना ये मंत्र कि जिसकी हद नहीं। सो यू डू जस्ट 1-2 टाइम्स टुगेदर, ऑल ऑफ यू जो भी घर में है, इट विल बी अमेजिंग, जस्ट डू दैट। प्रभु हमारे पास तो चलता ही रहता है ये फिर। बहुत ही बढ़िया है, फिर तो बहुत ही अच्छा। क्योंकि हर काम करते, एक तो वो जाप हो गया सो वो हो गया, हाँ, पर इसके कीर्तन बावजूद भी दिन भर काम करते हुए हरे कृष्ण कीर्तन बहुत ही बढ़िया। होता तो रहता है। ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यही होना चाहिए, सततम कीर्तयन्तो माम माम यतन्तश्च दृढ़वता। सतत, भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं, यू हैव टू चैंट इंसेसेंटली, हम्म, हमेशा हमेशा पूरे समय 24 घंटे होना चाहिए नाम। लेकिन हम्म, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर काम भी हो रहा है तो भी नाम, हम्म। है ना, तो बहुत अच्छा है। बीच में कुछ बातें बुतें भी हो जाती हैं, जैसे कुछ पूछना है या कुछ करना है, और हाँ इन बिटवीन फिर मुंह पे आ जाता है अपने हाँ, आप ही। बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ऐसी प्रैक्टिस करेंगे ना आंटी जी, तो एट द जब हमारा ऊपर जाने का समय आएगा, उस समय भी हमारे अपने आप ही मुंह से भगवान का नाम निकलेगा, बस क्योंकि वही प्रैक्टिस चाह, इतनी हो वही गई है चाह ना। फिर। तो अभी हमें प्रैक्टिस ही करनी है, और कुछ नहीं करना है, कि हर जगह, जैसे अभी पहले चोट लग जाती थी तो उल्टी सीधी चीजें मुंह से निकलती थी, अभी हम्म, चोट लगती है तो ओ कृष्ण, ये जो चीज है ना,
और जैसे किसी को छींक आती है, पहले बोलते थे ब्लेस यू, अब क्या बोलते हैं, कृष्णा ब्लेस यू, है ना। अब एकदम से क्या हो गया, कृष्णा जहाँ अब नाम जुड़ आ रहा गया है ना, साथ में। अभी क्या हो रहा है, हम मेरे को एकदम से नरसिम्हा देव याद आ जाते हैं। कभी भी कुछ छोटा सा भी कुछ होता है, एकदम से नरसिम्हा देव याद आते हैं। इट्स ए वेरी गुड थिंग, नरसिम्हा देव याद आ रहे हैं, तो और क्या चाहिए बताओ। क्योंकि टाइम जो हो रहा है जिस समय हमने जाने का टाइम होगा, उस समय दर्द बहुत होने वाला है। अगर हम नरसिम्हा देव को याद कर लेंगे तो हो गया अपना काम, है ना। पर प्रभु अभी कुछ दिन पहले जब मैं तबीयत खराब चल रही थी जैसे मेरी, हाँ तो बीच में मैं सोई हुई थी अपनी हाँ तरफ से, और फिर एकदम सुबह का टाइम था या शाम का, सुबह का ही होगा वो, हाँ अर्ली मॉर्निंग में होता है जागना सोना बीच में। तो हाँ। मुझे आपा करके एक वर्ड सुनाई दिया। आपा। आपा। आपा कौन होते हैं प्रभु? वो जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, अपनी बहन को आपा कहते हैं। हाँ तो मैंने कहा इसका मतलब या तो मैं पिछले जन्म में मुस्लिम रही होंगी, और या फिर अगले जन्म में फिर कहीं मुस्लिम तो नहीं बनना। फिर भगवान से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नहीं प्रभु, अगले जन्म में ऐसा। बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए मुझे। बस अब बस बस। मुझे और नहीं करना अभी कुछ और भी, वो बस। तो आप ये जो आप इस तरह की जो आपको शब्द सुना देते हैं, उसकी आप चिंता मत करो। जब आप, हमें अभी इन सब चीजों में सोचना ही नहीं है, हमें तो बस अपनी चैंटिंग करते रहो। और आपने, जिसने कहते हैं एक बार भी चैंटिंग कर ली ना, उसकी भक्ति स्टार्ट हो गई है, और वहीं से शुरू होगी नेक्स्ट बर्थ में। तो बस मुसलमान घर में बस जो वही मांग रही टेंशन, हूँ, वो नहीं होगा, कुछ वही नहीं, मांग रही हूँ प्रभु अब नहीं भगवान होगा से। उसमें। क्योंकि आपकी जी। भक्ति जहां पर खत्म, जहां से जहां रुकेगी यहाँ पर इस जन्म में, उधर से ही दूसरी शुरू होगी। आपको ए फॉर एप्पल वापस नहीं करना पड़ेगा भक्ति में, कम से कम, शुक्र शुक्र है प्रभु। ना। चलो। जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा आद्या। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरि कृष्णा। बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओ माय गुडनेस, शी You इज want to sew डूइंग। your t-shirt with Krishna? ओ वाह, कृष्णा। ओ, वो कह रही बहुत मैं बहुत ए फॉर एप्पल नहीं करूंगी। वो वो बी फॉर भगवत गीता या करेगी। हमारे या बी फॉर बलराम है। बी फॉर बलराम, वेरी गुड। चलो। हरे कृष्ण। Thank you, बहुत Prabhu. बहुत Thank you for a बहुत wonderful class. Very, very informative. Love it. बेटा, तुमने बहुत अच्छा, तुम ट्रेनिंग दे रही हो। ऐसी ट्रेनिंग तो हमने देखी नहीं बच्चों वेरी के सब नाइस। साथ। गुरुओं के आशीर्वाद है माता यस। जी। जी सब गुरुओं के आशीर्वाद है। जी। हरे कृष्ण। अपनी हरे तरफ से कृष्णा। करते थे, पूजा पाठ सब था, पर इस ढंग से कभी नहीं किया जैसे आपने आप बचपन से सोचो, बचपन शी इज का लिसनिंग टू सिखाया। श्रीमद् भागवतम। जी, बस बहुत बड़ी बात है, हमारे भक्ति वृक्षा से भी सारे लोग नहीं है, जो बड़े बड़े इतने टाइम से भक्ति वृक्षा आ रहे हैं, वो भी नहीं है आज भक्त क्लास में। जी आद्या है क्लास में। Yeah, yeah. She's हरे always there for the group. जी। हरे Hare कृष्ण। Krishna. हरे Hare श्रील Krishna. प्रभुपाद Thank you for की हरे your जय। time. कृष्ण प्रभु। Hare थैंक Hare यू। Krishna, Krishna. Prabhu. कृष्ण। Hare Thank you Bol. so much, Prabhu. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna.